अधिकारी पूरे देश जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से हैं, वो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। न सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी बल्कि जो फ्रंटलाइन स्टाफ जिसको हम कहते हैं, चाहे रेंज ऑफिसर हो, फॉरेस्ट गार्ड्स हो, फॉरेस्टर्स हो, जो जंगल के सुदूर इलाकों में बड़ी कठिनाई और चुनौतीपूर्ण पार्टिसिपेट कर रही हैं सर। तो मैं इसके साथ ही सभी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दूर दराज प्रदेश से IGNFA के प्रोफेशनल्स जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त धन्यवाद सर। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कई राज्यों में PCCF एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के सर्वोच्च पद पर अब महिला अधिकारी स्थापित है सर। और ऐसी ही एक महिला अधिकारी हैं श्रीमती आर शोभा मैम, PCCF एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स तेलंगाना। वे हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं सर अपने टीम के साथ, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ। उनमें एक हमारी प्रथम महिला रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर भी है आज उनके साथ। मैडम, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव योर एड्रेस टू द ऑडियंस। Namaste, sir. This is Shobha speaking from Hyderabad. And thank you very much, sir, for giving us this opportunity of inaugurating our book on Green Queens of India, the nation's pride, in e-mode. And I have, sir, she is Mrs. Ramalakshmi, the first lady forest officer, pioneer of 1980 batch. She has retired in 2014. And I also have Kamala Chobna Rao, PCCF retired from Kerala of 87 batch, and my other colleague Green Queens here. We are very happy. Our long struggle, sir. Since 2 years we have been working on this to get to this book, and we have completed it in the last 2 weeks at a breakneck speed. We could compile the challenges we have faced, the performances of almost all the forest officers, lady forest officers, and as well as their achievements, shortly written, very shortly, briefly written in this compilation. And we request you, sir, by the end of this year, as the situation improves, kindly organize a national conference for all the women forest officers, where several issues about IFS officers and the field officers also can be discussed, and we can come up with good strategies. Thank you very much, sir. Very good. Thank you very much, ma'am. And also now to represent the center and the many roles women officers have played at policy level, I request Srimati B.V. Uma Devi ma'am, Additional Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, to kindly address. Honorable Minister for Environmental Forests, Secretary Environmental Forests, आवाज जरा लाउड करो। Shri Sanjay Kumar ji, DG and Special Secretary, President IFS Association, Shri S.P. Yadav ji, my lady colleagues, seniors and juniors in the service. At the outset, I would like to thank our Minister for giving us this time from his busy schedule, even while the Parliament session is on. Sir, it is your push and drive which motivated us to organize this event of launching this e-book on women IFS officers of the country on the occasion of International Women's Day. This event was being planned, as rightly said by our senior, for almost a year ago, but could not happen physically because of COVID. Today, it is indeed a great opportunity and a celebration and a proud moment for all women IFS officers of the country. And they are connected virtually today to see this event. I'm happy to mention that at present we have around 280 lady IFS officers posted in various positions, posted across the country, ranging from head of the forest force, principal chief conservator of forests, chief wildlife wardens, to chief conservators, directors of the zoos, national parks and divisional forest officers. और field staff कितना होगा women? Field staff should be around 10%. 10% के थोड़ा। We are only 10% of 2,343 IFS officers, sir. We are 284 out of 2,343. नहीं, all IFS officer 288 बोला आपने। 280. हाँ 280। नहीं समझ गया। बाकी जो फॉरेस्टर है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनकी टोटल संख्या कितनी होती है और उसमें से 10% माने क्या होता है? लगभग सर 50,000 होगा। तो 5,000 है। Sir, in Telangana, we have about 4,000
total staff of field officers, of which we have exactly 33% are women, sir. Very good. Yes, sir. So, though this number is less than 10% of the members in the service, it's a great achievement for us. A large number of women officers are also working in Government of India and are involved in policy making at the level of Additional Secretaries, Joint Secretaries, Directors, Inspector General of Forest, Deputy and Assistant Inspector General of Forest. So, apart from Class 1 officers, as you rightly asked, many women are posted at the level of forest guards, foresters, range officers, and assistant conservator of forests and sub-divisional forest across the forest officers across the country. When the first lady officer, Srimati Ramalakshmi, was recruited into Indian Forest Service in 1980, people were skeptical about our capabilities, but the fact that we have now around 5 heads of forest force as women shows our potential and strength in contributing to forest and biodiversity conservation. So this book, prepared electronically, has details of all women IFS officers, their profiles, their achievements, and these officers are from a wide range of disciplines, and they are postgraduates, PhDs, specialized in science disciplines and other science disciplines, including engineering. Some of the women officers have done exceptionally well in the field of forest protection and conservation and are national and international awardees. With this brief introduction, I once again thank all of you and welcome you to launch the e-book on women IFS officers on the occasion of International Women's Day. लेकिन ये तो प्रिंटेड बुक है, ये बुक कहाँ है, उसमें दिखेगा क्या? सर्कुलेशन के लिए बुक ही है सर, एक उसका स्क्रीन हाँ। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ हाँ यस वही है, ये दिखाना वो ये बुक कहना थोड़ा गलत होता है। अभी एक एक कॉपी है। हाँ चलो। Thank you very much, ma'am. We also have with us Dr. Sanjay Kumar sir, Director General of Forest and Special Secretary MOEFCC. सर मैं आपको अनुरोध करती हूँ कि आप अपने विचार सभा के लिए व्यक्त करें। आदरणीय मंत्री जी, सचिव महोदय, हमारे सीनियर कलीग्स, श्रीमती रामलक्ष्मी मैडम, श्रीमती वीना सिकरी मैडम, अन्य जो हमारे वरीय सहयोगी हैं, हमारे मंत्रालय के, हमारे अन्य मंत्रालयों से जुड़े हुए भारतीय वन सेवा की सभी अधिकारीगण, खास करके महिला अधिकारीगण, हमारे सभी कलीग्स, आज माननीय मंत्री की प्रेरणा स्वरूप हम लोग प्रथम बार यह दिवस इस प्रकार आयोजित कर रहे हैं। इसके लिए सर हम आपके बहुत आभारी हैं। सभी हमारे सहयोगी गणों ने हमारे महिला अधिकारियों की कर्मठता, उनकी कार्यकुशलता, उनकी प्रतिभा के बारे में कहा, लेकिन डीजी फॉरेस्ट होने के नाते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि यह हमारे सर्विस की आवश्यकता भी है। सर, फॉरेस्ट जो है एक बायोलॉजिकल साइंस है और बायोलॉजी तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि दोनों जेंडर्स जो हैं इसमें समान रूप से सहयोगी नहीं। बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो हम पूरे प्राणी जगत में देखते हैं, चाहे वह वन्य जंतु हो या वनस्पति हो, उसमें प्रमुखता है महिलाओं की और प्रमुखता है फीमेल जेंडर, और उनको हमारे महिला अधिकारी समझ सकने में बहुत अधिक सक्षम है बनस्पति जो पुरुष जेंडर है उसके। तो इस लहजे से भी हमारा
जो फॉरेस्ट्री साइंस है, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट है, वह तब तक परिपूर्ण नहीं हो सकता है जब तक कि हमारे महिला अधिकारियों, कर्मचारियों की सहभागिता, उनकी भूमिका इस हमारे पूरे सिस्टम में मजबूती के साथ उभर के नहीं आए। और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे हम लोग उठाने का प्रयत्न करेंगे। हम चाहेंगे हम लोग कि न केवल महिलाओं की प्रतिभागी की संख्या 50% हो, बल्कि इससे कहीं ज्यादा हो, ताकि हमारा जो फॉरेस्ट्री साइंस एज ए डिसिप्लिन जो है, एज ए मैनेजमेंट डिसिप्लिन जो है, वह बहुत मजबूती से उभर करके सामने आए। इन्हीं के साथ मैं आपको सभी को पुनः साधुवाद देना चाहता हूं, पुनः आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि आपके प्रयत्नों से, आपकी प्रतिभा से, आपकी कर्मठता से हमारा जो फॉरेस्ट का जो विषय है वह सदा आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री आर.पी. गुप्ता सर, सेक्रेटरी MOEFCC, सर आप अपने विचार व्यक्त करें सर। माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, मंत्रालय में मेरे दूसरे सहयोगी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विभिन्न अधिकारीगण और खास करके अलग अलग स्तर पर जो महिलाएं वन सेवा में काम कर रही हैं, वो सभी, जैसा कि डीजी साहब ने कहा, प्रकृति में एक तालमेल है, मेल और फीमेल जेंडर का, और प्रकृति के अगर हम विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न जो इसकी स्पीशीज हैं उनको देखें तो उनमें बहुलता वो फीमेल जेंडर की है। वो वनस्पति हो, हमारे विभिन्न जीव जंतु हो, या और कोई भी हो। सिर्फ एक शायद हम इस प्रकृति से जैसे जैसे थोड़ा सा अलग होते चले गए तो इसमें भी एक अंतर आता चला गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। और वन सेवा में तो खास करके महिलाओं के ज्यादा भागीदारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रकृति से जुड़ना, उसके साथ की जो संवेदनशीलता, वनों पर निर्भरता और वनों से होने वाले फायदे, अब उसको हम कंजर्वेशन के उस स्वरूप में लें, जैसे कि लकड़ी का अगर ईंधन के रूप में उपयोग करने से उनके ऊपर जो विपरीत असर पड़ता है तो उसको, उसके विकल्प को स्वीकारना। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारी संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और हमारी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए और उसके संरक्षण के लिए जो संवेदनशीलता चाहिए, वो संवेदनशीलता जितनी अधिक मात्रा में, जितने अधिक अनुपात में महिला अधिकारी होंगी, उतना हमारा एक ओवरऑल इस जो ये सेवा है, वन सेवा, इसमें सभी भारतीय वन सेवा से लेके नीचे फॉरेस्ट गार्ड तक सभी स्तरों पर सेवाएं शामिल हैं, उनका उसका एक जो सेवा का प्रमाण है और उसकी जो गुणवत्ता है वो निश्चिततया उसमें सुधार होगा। जितने भी महिला अधिकारीगण इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से हर क्षेत्र में महिलाएं अपना अलग अलग
कामों में अपने नाम रोशन कर रही हैं। उसी तरह से मुझे याद है गिर में एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जंगल क्वीन, जिसमें एक वहाँ की महिला अधिकारी वो शेरों के संरक्षण के लिए उनके साथ में उनके उसके लिए काम करती हैं। तो इस तरह की ये तो एक प्रोमिनेंस में आई है, बट इस तरह की बहुत कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो हमारे सामने नहीं आए हैं। बट लेकिन इससे जिन जो सामने नहीं आए हैं उनका योगदान कोई कम नहीं होता है। वो अननोन केसेज की तरह से इस अपना योगदान कर रहे हैं। कि फिर से सभी महिला अधिकारियों को जो वन सेवा में हैं और अपना देश की प्रगति में, खास करके प्रगति के को बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं, उन सभी को मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूं आज के इस महिला दिवस के अवसर पर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने सर जिक्र किया बेस्ट प्रैक्टिसेस केस स्टडीज का। सर इस किताब में 200 से ज्यादा सर केस स्टडीज हैं सर, और ये पूरी तरह से सर जिसको हम क्राउड सोर्सिंग कहते हैं, तो महिलाओं ने खुद से योगदान करके, और सर इसको उन्होंने बोला इसमें सर भूटान की भी महिलाओं का भी सर जिक्र है जो फॉरेस्ट सर्विस में ट्रेनिंग करती हैं। तो इसीलिए सर मैं अब अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री वन मंत्री पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन श्री प्रकाश जावड़ेकर सर, सर आपने हमको बहुत ही इसमें प्रोत्साहन दिया है, पिछले साल भी आप थे। अब मैं आपको अनुरोध करती हूँ कि आप अपना प्रमुख भाषण देकर इस सभा को संबोधित। इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के सभी राज्यों से जुड़े महिला फॉरेस्टर्स, हमारे सचिव, डीजी, अन्य सभी अधिकारी, आज मुझे खुशी है कि ये महिला दिवस पर हम महिला फॉरेस्टर को पहली दफा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। आज आपके प्रतिनिधि के रूप में शोभा जी और उमा देवी, इनको हमने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन मैं सभी 280 फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स, कुछ रिटायर हुए हैं, कुछ अभी भी सर्विस में हैं, और 5000 से ज्यादा फ्रंटलाइन स्टाफ जो महिला है, उन सबका बहुत स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मेरा तो हमेशा मानना है कि मानव जाति ने कितना खोया। ईश्वर ने बुद्धि बांटते समय पुरुष और स्त्री में भेद नहीं किया। ईश्वर ने कैपेसिटी देते समय कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई भेद नहीं किया। मेरा अनुभव तो यह है कि महिलाओं में 3 विशेष गुण होते हैं। हम पुरुषों से भी थोड़ा ज्यादा। एक कंपैशन है, एक कंसिस्टेंसी है, और मैं अनेक हजारों घरों में देखा है बचपन से, करेज भी महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है। तो कंपैशन भी, कंसिस्टेंसी भी, करेज भी, यह महिलाओं की विशेषता है। और लगन, मेहनत और प्रतिभा में कहीं भी कमी नहीं है। जैसे अनेक पुरुष अधिकारी हो या कर्मचारी हो लगन, मेहनत, प्रतिभा से काम करते हैं, वैसे ही महिला करती है। तो अभी इतने साइंटिस्ट महिला है, इतने उत्तम इंजीनियर महिलाएं हैं। कल भारत की एक विशेषता है कि सब ऑयल कंटेनर शिप पूरा का पूरा महिला क्रू ने चलाया। यह दुनिया का पहला उदाहरण है। अंतरिक्ष में भी गई, क्योंकि मेरा मानना ही है कि इसमें कोई कमी है ही नहीं।
बल्कि 2-3 चीजें ज्यादा अच्छी है। तो मैं हमेशा विचार करता हूं कि हजारों साल से मनुष्य ने उनको पढ़ाया नहीं। मैं अभी 150 साल हुए, 200 साल हुए महिलाओं को पढ़ाने लगे, नहीं तो उनको कोई पढ़ाता नहीं था, घर के बाहर कोई जाने नहीं देता था। और ये भी हमने देखा कि ऐसे पढ़ाई से आज किसी भी बोर्ड की एग्जाम होती है, 10वीं हो या 12वीं हो, उसमें छात्राएं बढ़ चढ़कर ज्यादा नतीजा लाती है, ज्यादा मार्क्स प्राप्त करती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो कंसिस्टेंटली काम करती है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। तो इसके साथ वो काम करती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी जैसे सेक्रेटरी जी ने कहा, मुझे भी बताया गया कि फ्रंटलाइन स्टाफ में गिर में, गुजरात में शेरों को ट्रैंक्विलाइज करने का काम भी जब जरूरत होती है तो महिला फ्रंटलाइन वर्कर्स करती है। हमारे इतिहास में भी हमने देखा है कि रानी अहिल्याबाई होलकर हो, रानी चन्नम्मा हो, झांसी की रानी हो, बहुत खूब लड़े। तो पूरा लड़ाई भी करी। मादाम क्यूरी जैसी साइंटिस्ट हुई जिसने दुनिया को एक बीमारी से मुक्त किया, एक वैक्सीन निकाला। और पहले भी गार्गी और अन्य महिलाएं बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ी और विमर्श भी करती थी, बहुत अच्छा। तो ये महिलाओं की ताकत है। और इसलिए बीच के काल में जो महिलाओं को न पढ़ाने का, उनको काम न करने देने का जो प्रथा शुरू हुई थी वो बहुत गलत है। आज महिला सभी क्षेत्रों में है और बढ़ेगी। आज के कार्यक्रम को जो कवर कर रहे हैं, ANI, IANS, DD न्यूज, इनके भी तीनों प्रतिनिधि आई है, वो महिलाएं हैं, नंदिता, प्रज्ञा और आकांक्षा। तो इस तरह से सभी क्षेत्र में दुनिया के आज आगे बढ़ रहे हैं। ये जो ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया लिखा है किताब, वो ई बुक है, केवल फोटो के लिए 5 कॉपी हमने निकाली थी जिसका प्रकाशन किया है, लेकिन बाकी ई बुक है, उसमें जोड़ भी सकते हो। और मैं तो कहूंगा कि अगले वर्ष से हम जैसे 2 अधिकारियों को सम्मानित करेंगे, वैसे 5 फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी सम्मानित करेंगे और उनको कुछ अच्छा पुरस्कार भी देंगे। केवल सम्मानित करना माने रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो ये करेंगे क्योंकि जो फ्रंट पे जाके काम करती है, जंगल में जो जाती है, और वहां की स्थानीय लड़की अगर होगी तो बहुत आत्मीय भाव से वो काम करती है। वो सारा परिसर उसको जितना मालूम है उतना शायद ही किसी को मालूम होता है। और मैं ये नहीं, ये काजीरंगा में देखा है। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा आज अवसर आया। और केवल 365 दिन में एक ही दिन जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तभी महिलाओं का सम्मान करे, ये भी ठीक नहीं है। महिलाओं को उनके कैपेसिटी के अनुसार पूरी अवसर मिलना चाहिए। और मैं तो राजनीति में देखता हूं, जब पहली दफा स्थानीय निकायों में आरक्षण शुरू हुआ तो लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अब 30 साल होने के बाद लोगों को समझ में आया कि वो भी उतनी ही अच्छी ताकत से काम करती है और बहुत सफल
काम करके दिखाती है। तो ये मेरी मान्यता है। तो फिर से उमा देवी जी, शोभा जी, बाकी सभी विमेन फॉरेस्टर्स को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए निश्चित अगले वर्ष भी हम एक अच्छा कार्यक्रम में मिलेंगे, क्योंकि तब वर्चुअल मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब वर्चुअली देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जिनको सम्मान करना है वो सब आ सकती है, ऐसा निश्चित मुझे विश्वास है। और इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इस तरह का कार्यक्रम हमने किया है। धन्यवाद।